Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the remaining portion of the first lecture of Stereochemistry. First of all, we'll start with the examples which you need to understand. In the previous lecture, we were discussing about the different types of the stereochemistry. We discussed about the classification of the stereochemistry. Right now, we'll start with a few examples, which is based on different constitution isomers and you can say that stereoisomers. So there is a difference between constitutional isomers and the stereoisomers. If you look at the first example, in this example, there are two molecules. Both the molecules have the same molecular formula. They have same molecular formula. They have number of carbon atoms 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. They have 7 carbon, and they have same 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So they both have same carbon atoms. They both have same hydrogen atoms. They both have same carbon atoms. So both the structures are same, but the difference is that the arrangement of the atoms or the arrangement of the groups which is attached or interconnected in the structural form are different. So one will be considered as a 1 3 sorry 1 2 3 4 2 4, and the second one will be considered as a 3 4. So they have different IUPAC name. They have same molecular formula but different in the structural or positioning of the groups which is connected. So they both have different IUPAC name, IUPAC naming, different IUPAC naming. Both the molecules are constitutional isomers. So the first example belongs to the constitutional isomers. Just I will write the constitutional isomers. So they are also indicated by short symbol CI. CI means constitutional isomers. If you look at the second molecule, in the second molecule, you can see that there is a difference in the functional group. First molecule has alcoholic functional group, while the second molecule has an ether group. But if you look at, or if you compare, or if you convert both the molecules in the molecular form, their molecular form will be like that. They both have same carbon atoms, 2 carbon atoms. They both have same hydrogen atoms. They have 6 hydrogen atoms, and they have only 1 oxygen atom. तो दोनों के अंदर आपके पास अगर देखो, इस मॉलिक्यूल के अंदर भी और इस मॉलिक्यूल के अंदर भी आपके पास 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. Both have same molecular formula, but there's a difference in the arrangement of atoms. There's a difference in the groups or the functional groups or atoms or groups of atoms connected with the structural form. So they have both have different functional group. So they are also considered as a constitutional isomer, CI. In third example, you can see that again the structure are same, and the point of difference is the presence of the functional group. In this we have ether group, and in structure 1 we have ether group, and in second structure we have alcoholic group, but they have same molecular formula. They are also categorized as a constitutional isomers. If you compare the fourth molecule, you can see that they have same molecular formula. They have same number of carbon atoms. They have 6 number of carbon atoms, and they have number of hydrogen atoms, which is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 number of hydrogen. Both the molecules have same number of carbon and hydrogen atoms, but the difference is that they have, मैं ए और बी से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मॉलिक्यूल को. तो बोथ द मॉलिक्यूल्स हैव द अरेंजमेंट, द ग्रुप्स व्हिच इज अटैच्ड विद this A in the structure of A or in the structure of B, both the groups are methyl groups. Their orientation, the arrangement of atoms in 3D space are different. This line indicates that this methyl group is towards the observer.
मैंने इसको लास्ट लेक्चर में भी आपसे बताया था कि सॉलिड लाइन इंडिकेट करती है कि इट इज़ टुवर्ड्स ऑब्जर्वर और डॉटेड लाइन इंडिकेट करती है ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. In the first molecule, in A molecule, the methyl group, uh, which is at one number, and the methyl group is at two number. The methyl which is at one carbon is towards the observer, and the methyl which is at two number, two second carbon, it is away from the observer. While in the second molecule, B molecule, the methyl which is attached with the A carbon number one is and the methyl group which is connected with the carbon number two. Both the methyl group which are connected with carbon one and carbon two, they are towards the observer. Their orientation in the 3D space, orientation in the 3D space is same or different. So they have different arrangement of atoms. So the arrangement of atoms or groups will be different. Both the structures are same, but the arrangement are different. In molecule A, the group which is attached, it is towards observer. One of the group is towards the observer, and the second group will be away from the observer. While in the second molecule, B molecule, both the groups, methyl groups, are towards the observer. Both they have the same molecular formula. They have same molecular formula, but the difference is the arrangement of atoms in 3D space. Few groups are towards the observer, and the few groups are away from the observer. So the arrangement of atoms will differentiate this example number 4, and this example number 4 will be known as stereoisomers. Stereoisomers. सो एज वी डिस्कस दैट स्टीरियो मीन्स आपके पास स्पेस के अंदर 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन स्पेस के अंदर जो आपके पास बनने वाले आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं किसी भी स्ट्रक्चर के, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी ड्रग के, उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, यानी कि 3D स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनली उनकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसे दिखती है. तो इसका सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला है, पर स्ट्रक्चरल आपके पास अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है. ग्रुप्स भी सेम है, पर उनकी ओरिएंटेशन 3D स्पेस के अंदर डिफरेंस होने की वजह से ये कंसिडर किया जाता है स्टीरियोआइसोमर्स के तौर पर. ठीक है. तो अगर हम एक और एग्जांपल आपको समझा दो स्टीरियोआइसोमर्स की, अगर चाहो तो स्टीरियोआइसोमर्स के अंदर एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं. इसको ले सकते हो आप कि हम इसको ब्रोमीन एंड क्लोरीन, इसी तरीके का एक और मॉलिक्यूल बनाया जिसमें ब्रोमीन हो गया और ये क्लोरीन. ठीक है. तो दोनों का मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, पर 3D अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है. ठीक है. तो इसकी नेमिंग जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है. इसकी नेमिंग के लिए हम पढ़ेंगे आगे. आपके पास आर और एस और आपके पास डी और एल कन्फिगरेशन है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कन्फिगरेशन. तो हम एग्जांपल्स उसकी देखेंगे नॉमेनक्लेचर्स के अंदर. तो आपको ये जो एग्जांपल है बिलोंग करती है स्टीरियोआइसोमर से. एसआई मीन्स आपके पास स्टीरियोआइसोमर है. ठीक है. तो इसी तरीके से आपके पास डिफरेंस क्लियर हो गया कि कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर क्या फ़र्क होता है. अगर हम देखें कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर की, हम इसको एग्जांपल अगर मैं इसको जनरलाइज स्कीम के तौर पर बनाऊं, तो हमने स्टीरियो आइसोमर्स को कहा कि स्टीरियो आइसोमर्स की दो टाइप्स होती हैं. एक कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर होता है और एक होता है कन्फर्मेशन आइसोमर्स होता है. तो कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर को हमने कहा ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल होते हैं और दे आर इजीली आइसोलेटेबल. आप इसको सेपरेट कर सकते हो क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो एक आइसोमर की दूसरी आइसोमर के मुकाबले में डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो दे आर इजीली आइसोलेटेबल. बट कन्फर्मेशन आइसोमर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स दे आर इजीली इंटर कन्वर्टेबल, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट का फ़र्क होने की वजह से दे आर डिफिकल्ट टू आइसोलेट. ओके. So in configuration isomers, if we generalize, if we draw the generalized scheme of this configuration isomer, तो अगर मैं इसके इक्वेशन के फॉर्म में बताऊं, तो लेट्स सपोज एक हमारे पास मॉलिक्यूल है, हमने इसको कहा इसमें
यहाँ पे हमने कह दिया इसमें एक ए ग्रुप अटैच है और एक बी ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये आर है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, इसको हमने ए मॉलिक्यूल कह दिया, ठीक है। इसी का अगर हम आइसोमर एक और बनाएं, तो इसका एक और आइसोमर ये भी बन सकता है, जिसमें सॉरी इस तरह बन गया, बी और ये ए है, ठीक है। हम इसको कहें कि इसी का एक और आइसोमर बनाएं, तो इसका बी आइसोमर बन गया, ठीक। फ़र्क क्या नज़र आ रहा है आपके पास ए और बी मॉलिक्यूल के अंदर? इन द केस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स यू हैव टू रोटेट द बॉन्ड। आपके पास अगर हम इसको 360 रोटेट करें, इसको 180 डिग्री पे रोटेट करें, तो रोटेट करने के नतीजे में आपके पास देयर विल बी change of group, but it is not easily possible. You have to change, if you want to change the A group with the B group, or the positioning of the A group with the B group, you have to rotate the molecule and you have to break the bond. So don't rotate to change AB into B, यानी कि without rotating or without breaking of the bond, it is not possible to interconvert A position into the B position and the B position into the A position. अभी A B कोई सा भी ग्रुप हो सकता है. तो bond breaking is required in order to generate the new isomeric form of configuration isomers. So both A and B are two different compounds and they are two different isomeric forms. While in conformation cases, अगर इसकी आसान लफ्ज़ों में एग्जांपल लें, तो आपकी बॉडी रोज़ाना आप देखते हो अपने आप को, तो अगर आप सिंगल आसान लफ्ज़ों में समझाएं, तो अगर एक पर्सन की ये बॉडी देखो, रोटेशन ऑफ हैंड, इस हाथ की इस जगह पर रोटेशन, यानी कि आप जो हाथ रोज़ाना रोटेट करते हैं ऑन अ सिंगल एक्सिस, एक द रोटेशन ऑफ अ बॉन्ड ऑन अ द रोटेशन ऑफ योर हैंड ऑन अ सिंगल जॉइंट विल गिव्स यू नंबर ऑफ कॉन्फर्मेशंस। यानी कि आपकी बॉडी डिफरेंट कन्फर्मेशन, डिफरेंट पोजेस जनरेट करती है, डिफरेंट कन्फर्मर्स जनरेट करती है, डिफरेंट पोजेस जनरेट करती है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट पॉस्चर्स, ठीक है। तो अगर आपका हाथ बिल्कुल लाइंग पोजीशन के अंदर, आपकी हाथ की पोजीशन कुछ और होगी, आप स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर आपकी हाथ की पोजीशन कुछ और होगी। इस कन्फर्मेशन को हम फर्दर हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, तो वहाँ पर भी इसको हम डिटेल देख लेंगे। और राइट नाउ फॉर कंपेयरिंग द कन्फिगरेशन एंड कन्फर्मेशन आइसोमर्स में सिंपली आपके पास, लेट सपोज हमारे पास दो कार्बन इंटरकनेक्टेड है और इन हर कार्बन के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये आपके पास इथेन मॉलिक्यूल कहलाएगा। इनके ऊपर अटैच होने वाले जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, और आप देखो तो इसमें इनकी जो केमिस्ट्री है, अगर इस कार्बन पे अटैच होने वाले हाइड्रोजन को मैं रोटेट करूं 360, तो एच की ओरिएंटेशन चेंज होगी, ठीक है। तो इसमें सिंगल एक्सिस के, अपने एक्सिस के ऊपर आप जो कार्बन वो रोटेट हो रहा है, स्पिन कर रहा है 360 डिग्री के ऊपर, जिसके नतीजे में उसके हाइड्रोजन की या कोई भी ग्रुप्स उस पर जो कार्बन पर अटैच है, उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो रही है। अगर ये एच आपके पास सामने था, अगर दिस एच इज टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, इफ यू रोटेट इट एट अ सर्टेन एंगल, then this edge will come forward and this edge will further come forward and this edge will further move away from the observer. So the rotation of the molecule on its axis will give you number of poses or conformers of a single molecule, which results into number of isomeric generation, conformational isomers. So we conclude that कि अगर हम इसमें की पॉइंट समझने की कोशिश करें, तो दो मेन पॉइंट है इसके अंदर। दो स्ट्रक्चर्स दैट कैन बी इंटरकन्वर्टेड सिंपली बाय रोटेटिंग, by the rotation about a single bond, are going to produce number of conformations of the same molecule, ठीक है। ये आपकी मिसाल में ना आपकी बॉडी ही गई, आपका हाथ राइट हैंड को अगर आप मूव करोगे 360 रोटेट करोगे, तो जितने भी एंगल पर आपकी रोटेशन होगी वो एक नए कन्फॉर्मर्स जनरेट करेगा। दैट इज द मूवमेंट ऑफ योर बॉडी, the physique or the physiology of the body is the same, but when you are moving your body, they will result into number of poses or conformers, okay. While second key point is that the structures that can be interconverted by breaking, there is a phenomena of breaking the bond.
that the structures or the isomers that can be produced or interconverted by breaking one or more bonds have different configuration and they are considered as a stereoisomers. ओके, इसके अलावा पॉइंट्स है हमारे पास ईटोमर्स हिस्टोमर्स। ईटोमर्स हम उसको कहते हैं आइसोमेरिक फॉर्म से निकला है ये, जो वो आइसोमर्स जो कि स्टीरो आइसोमर्स जो कि चाहे वो एनेंटियोमर हो, डायस्ट्रोमर्स हो या मेसोमेरिक कंपाउंड्स हो, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स हो या कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर्स हो या ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो, if the isomeric form if the isomer produce a therapeutic effect or are responsible to produce the biological activity, they are capable to bind with the receptor to produce the pharmacological response, they are known as ectomers. ठीक है, और डिस्ट्रोमर्स इसका अपोजिट है, दोज कंपाउंड्स और दोज आइसोमेरिक फॉर्म्स व्हिच गिव्स टॉक्सिसिटी इन द बॉडी and do not result in a therapeutic response, or they do not have a successful binding with the receptor, they result in the toxicity generation, they are considered as a distromers isomers. While the ratio between ectomers and distromers are known as a eudismic ratio. Okay, the greater the ratio, the greater will be the binding capability of the drug with the receptor, the greater will be the therapeutic response, the greater will be the pharmacological activity of the specific isomer. While another thing is that is geometric isomerism. इस geometric isomerism की हम एग्जांपल समझेंगे Z एंड E के अंदर, ठीक है, E के नॉमेनक्लेचर देखें, सिस Z और ट्रांस E नॉमेनक्लेचर। राइट नाउ हम geometric isomers को समझ लें आसान लफ्ज़ों में, तो geometric isomerism results from the restricted rotation or the rotation of a single section of a molecule. Either the molecule it is in a cyclic form, or either the rotation of the molecule about the double bond, so results into generation of different isomeric form. ठीक है, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर भी होती है और डबल बॉन्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर भी होती है। अगर इसकी जनरलाइज आपके पास में एग्जांपल बताऊं तो अच्छा, ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म के अंदर एक पॉइंट ये भी समझ लें कि ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जनरेट होते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर या उन कंपाउंड्स के अंदर जिनके अंदर आपके पास स्टीरियो सेंटर्स होते हैं। स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, स्टीरियो सेंटर हम समझ चुके हैं, स्टीरियो सेंटर किसे कहते हैं, जिसमें आपके पास कायरलिटी होती है, जिसमें एसिमेट्री होती है। ठीक है, कायरलिटी, जब हम वर्ड कायरल का वर्ड यूज़ करते हैं, कायरल मीन्स एसिमेट्री है उसके अंदर, और ए कायरल मीन्स सिमेट्री है उसके अंदर। ठीक है, तो कायरल मीन्स उसके पास ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होंगे। तो डिफरेंट ग्रुप्स शुड बी अटैच्ड एट अ डबल बॉन्ड। तो अगर इसके हम एग्जांपल देखें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाएं, तो इसके ऊपर मौजूद होने वाले जितने भी ग्रुप्स ए बी सी डी, ओके, रोटेशन ऑफ दिस, अगर हम कहें कि हर कार्बन जो है वो इंडिविजुअल बिहेव करेगा, ये अलग बिहेव करेगा, ये कार्बन अलग बिहेव करेगा, तो ये 2 कार्बन है इंटरकनेक्टेड हैं डबल बॉन्ड की मदद से, इस कार्बन की रोटेशन अलग होगी ऑन इट्स एक्सिस और इसकी अलग होगी। हर कार्बन को हम सेपरेटली ट्रीट करेंगे, तो ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी, तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अगर इसकी हम प्रैक्टिसिंग एग्जांपल सॉल्व कर लें, तो प्रैक्टिसिंग एग्जांपल के अंदर हमारे पास कुछ केसेस हैं, तो देख लेते हैं। तो प्रैक्टिसिंग एग्जांपल के अंदर केस नंबर 1 देखूं, तो केस नंबर 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ब्रोमीन क्लोरीन HCH3, ठीक है, एंड कार्बन कार्बन CH3H Cl एंड Br। तो अगर आप देखें इस कार्बन, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं आपके पास, दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं, ये ज्योमेट्रिक आइसोमर्स की एग्जांपल है, ये दोनों ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, कार्बन 1 है, कार्बन 2, कार्बन 2 के ऊपर ब्रोमीन और क्लोरीन मौजूद हैं। जब इस कार्बन 2 को रोटेट करेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेट करेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड की मदद से अटैच हैं, तो एक क्लोरो ग्रुप जो नीचे था, क्लोरो ऊपर आ गया और ब्रोमो जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, एक और आइसोमर जनरेट हुआ बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन इट्स ओन एक्सिस, ऑन इट्स सिंगल एक्सिस। ठीक है,
इसी तरीके से एक और एग्जांपल दें। अच्छा, हमने कहा कि चारों ग्रुप डिफरेंट भी होंगे, एक चीज़ तो यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, मिथाइल हाइड्रोजन भी, ब्रोमीन और क्लोरो, ये चारों डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें हम, तो एग्जांपल है आपके पास यहाँ पर CH3 एंड कार्बन H एंड CH3। तो ये भी अगर आप देखो तो पहले तो आपने देखे हैं, ये दो का ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये कार्बन साइक्लिक फॉर्म के अंदर है, ये भी कार्बन साइक्लिक फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसी कार्बन के ऊपर आपके पास रोटेशन हुई, CH3 जो ऊपर था वो नीचे चला गया और H जो नीचे था ऊपर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखना है कि चारों ग्रुप्स डिफरेंट हैं या नहीं, ये भी देखना है हमने। तो यहाँ पर ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है आपके पास, और आपके पास कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, ये एच लगा हुआ है, तो ये आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं है। ठीक है, तो यू कैन easily identify the different geometric isomerism, different geometric isomeric structures or geometric isomeric forms in the form of isomers of the uh, structure of the drug. Right now let's talk about different styles or different easiest way to represent the structure of the molecules from 2D to 3D and from 3D to 2D। आपके पास जो जितने भी स्ट्रक्चर देखते हो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी शेप के अंदर हो, उनका 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल टू 2 डायमेंशनल आपके पास किस तरह से उसकी जो है वो स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन को हम विजुअलाइजेशन के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंटेशन के लिए 3 मॉड्यूल्स आपके पास प्रेजेंट यूज़ किए जाते हैं। एक आपके पास है फिशर प्रोजेक्शन, और सेकंड वन है आपके पास सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, और थर्ड वन है आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक है, ये इसलिए है कि जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देखते हो कि अगर उसकी 3D स्ट्रक्चर बना है तो उसको 2D में कैसे विजुलाइज किया जाए, और जो 2D स्ट्रक्चर उसको 3D के अंदर उसको स्पेस के अंदर ओरिएंटेशन किस तरह से नजर आती है उसकी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज की। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूलाज जो सबसे ज़्यादा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला जो है नाम रखा गया है साइंटिस्ट फिशर के नेम पर रखा गया है। The purpose of this Fisher projection formula is to represent the 3D structure into the 2D form। ठीक है, तो केमिस्ट या साइंटिस्ट और फार्मासिस्ट यूज 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 2D फॉर्म के अंदर किस तरह से स्ट्रक्चर को जनरेट किया जाता है वो कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, टू शो द configuration of molecule with multiple chiral centers, especially carbohydrate. This system, this Fisher projection formula, is specifically or specially used to generate the isomeric form of the carbohydrates or different proteins. So different building blocks of the protein or different types of the carbohydrates, चाहे monosaccharides or disaccharides हो, उन सब की जो है 2D प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास इस फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को यूज़ किया जाता है। सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल अगर हम देखें इसके अंदर हमारे पास है ग्लिसरॉल्डिहाइड, सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, दैट कंटेन्स अ chiral center and therefore it has a different pair of enantiomers। ठीक है, हमने कहा एनेंटियोमेरिक पेयर के लिए आपके पास एनेंटियोमर भी बना सकते हैं, खैर इसके अंदर क्या आपके पास सबसे कायरलिटी होनी चाहिए। अच्छा, सेकंड पॉइंट इसके अंदर फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, टू राइट अ फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ अ 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ओरिएंटेड सो दैट द वर्टिकल बॉन्ड्स फ्रॉम द कायरल सेंटर आर डायरेक्टेड अवे फ्रॉम यू। जो वर्टिकल लाइंस होंगी, यानी कि ये वर्टिकल लाइंस, ये डॉटेड लाइंस जो आपके पास, ये वर्टिकल लाइंस जिसको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। और हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं, ये कहलाती हैं, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, तो वर्टिकल बॉन्ड्स होंगे या वर्टिकल लाइंस होंगी फ्रॉम द कायरल सेंटर। कायरल सेंटर क्या आपके पास, ये कायरल सेंटर कार्बन है, are directed away from the observer, are directed away from you, and the horizontal bonds from the chiral center are directed towards। तो सबसे पहले किसी भी स्ट्रक्चर का आइसोमर जनरेट करने के लिए, चाहे वो स्टीरियो आइसोमर जनरेट करने के लिए आपके पास उसका जो है
कारलिटी को आइडेंटिफाई करना लाजमी है। तो हमने ये देखा एग्जांपल ली गैसल एल्डिहाइड, तो हमने देखा इसका कारल कार्बन क्या है, ये कारल कार्बन कहलाएगा, इसको हम स्टाइक से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, ये है आर ग्लेसर एल्डिहाइड। ये आर हम क्यों कहते हैं हम इसको बाद में समझ लेंगे, अभी हम इसको नोमेनक्लेचर पे नहीं जा रहे, सिर्फ हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो दिस मॉलिक्यूल इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लेसर एल्डिहाइड। इसके अंदर आपके पास अगर आप देखो तो टर्मिनल पे आपके पास अल्कोहल है, मिथेनॉल है, और हेड पे आपके पास में एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, और फिर बीच में OH है और H है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन मतलब अल्कोहल बॉटम है और अबव एल्डिहाइड है। बोथ एल्डिहाइड एंड अल्कोहल आर अवे। ठीक है, एंड बोथ द H and OH आर टुवर्ड्स। ओके, so this is the structure of this is 3D representation of the class aldehyde. You have to convert with the help of the projection Fisher projection into two dimensional। तो टू डायमेंशनल के अंदर आपके पास जो बायोकेमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा हो उसकी शक्लें कैसे नजर आती हैं, इस तरह से नजर आती हैं कि वर्टिकल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 2D रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से बनेगी, OH और H इसके दो हाथ हो गए, एल्डिहाइड उसका हेड हो गया, और अल्कोहल इसका टेल हो गई इसकी। तो जस्ट लाइक दैट। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल थी। इस तरीके से एक और मॉलिक्यूल अगर आप देख लें तो इसमें आपके पास दो कार्बन हैं, दो स्टीरियो सेंटर हैं। ठीक है, तो एक कार्बन ये है, एक दूसरा कार्बन ये है। हेड पे आपके पास मिथाइल है, टर्मिनल में आपके पास इथाइल है, बीच में आपके पास H और एयर Cl अटैच है। तो दो स्टीरियो सेंटर इसके पॉसिबल आइसोमर्स क्या होंगे, तो आप ना सिर्फ आइसोमर, आपने फिशर प्रोजेक्शन में बताना है कि इसकी शक्ल कैसे बन सकती है और आइसोमर्स कितने जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके वर्टिकल लाइंस मिथाइल और इथाइल जो है वो शो कर रही है कि इस मिथाइल और इथाइल दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एंड क्लोरो एंड हाइड्रोजन इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। यू कैन जनरेट और कन्वर्ट दिस 3D रिप्रेजेंटेशन इनटू 2D। ये आपके पास इसका फिशर प्रोजेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल अगर हम और ले लें तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर हमारे पास सिंपलेस्ट अगर आप देखो तो फिशर प्रोजेक्शन के हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी कुछ मॉलिक्यूल्स बनाए। अगर देखें तो हम सिंपल अगर आप देखते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल ले लें तो ग्लूकोज के अंदर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, CHO, कार्बन 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 CH2OH। ठीक है, ये हेड है और ये टेल है, हेड है और ये टेल है आपके पास। ठीक है, तो इसकी भी आपके पास साइंस है कि ये एल्डिहाइड ऊपर ही क्यों है और ये नीचे ही क्यों है। ठीक है, कि इसमें आपके पास जो हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप होगा, एल्डिहाइड इज अ हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप विल बी अपीयर इन द ऑन द टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर। ये हाईली ऑक्सीडाइज ग्रुप है, highly oxidized group will be at a top when you are generating the 2D dimensional or the 3D dimensional shape of the isomer, and the lowly or lower oxidized group will be at the bottom। अल्कोहल आपके पास इसमें मिथेनॉल जो आपके पास वो लोअर ऑक्सीडाइज था, और एल्डिहाइड आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो क्या था हाईली ऑक्सीडाइज था। तो इसकी केमिस्ट्री समझ में आ गई। इसके अलावा जो इसके हाथ निकले हुए हैं इसके, अब ये H और OH हैं, यहाँ पर डिफरेंट H और OH लगे हुए हैं, OH H H OH और OH H। तो ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इसका फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी तरीके से कोई सा भी मॉलिक्यूल बना रहे हैं, फ्रक्टोज, तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आपके पास ऑन द 2D सरफेस, 2 डायमेंशनल के अंदर आपके पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब यही OH और H अगर हम इसके 3D के अंदर बनाएंगे तो 3D के अंदर क्या होगा, इसके OH कुछ पीछे होंगे, H आगे होंगे, H आगे है, ये पीछे OH पीछे। तो यही H आपके पास आगे की तरफ है और ये OH पीछे की तरफ है। तो इस तरह से आपके पास ये 3D होगी। 3D टू 2D जनरेशन के लिए आपके पास फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अच्छा, इस फिशर प्रोजेक्शन और न्यूमैन प्रोजेक्शन और जो आपका सॉहर्स प्रोजेक्शन है उसके लिए सपोर्टिव मैंने ट्यूटोरियल डाल दिए है, उसको आप देख सकते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए बहुत ही आसान चीज़ है। न्यूमैन प्रोजेक्शन एक और प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्शन मीन्स कि आपके पास किसी भी आइसोमर को 3D स्पेस के अंदर देखने के लिए कोई उसकी
विजिबिलिटी को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, किस तरह से उसको विजुलाइज किया जाता है 2D और 3D स्पेस के अंदर, तो ये प्रोजेक्शंस कहलाती हैं। तो उनको डिफरेंट साइंटिस्ट ने उसको डिफरेंट प्रेजेंटेशन मॉड्यूल्स प्रेजेंट किए, जिसके बेसिस में आपके पास फिशर, न्यूमैन और सॉहर्स प्रोजेक्शन एग्जिस्ट करती हैं। In human projections, the representation of a molecule, अब कोई भी molecule सकता है, हम सिंपलेस्ट कार्बन की बात करें, with a carbon bond that is in front and shows a point as a point, and the carbon that is bonded to it shows a circle, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इस फिगर को समझने से पहले हमें एक चीज़ मॉलिक्यूल बना लूँ। लेट्स सपोज हमने इसमें कह रहे हैं कार्बन कार्बन दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इथेन है, इस कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा, सॉरी एच ऐड होंगे। ठीक है, सिंपलेस्ट एग्जांपल है आपके पास इथेन, इथेन की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है। तो दोनों कार्बन के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन मौजूद हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो एच 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 आपके पास 3 हाइड्रोजन एक फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच हैं, और फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के साथ अटैच है, वैलेंसी 4 हो गई। सेकंड कार्बन फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच है, वैलेंसी 4 हो गई, विद फर्दर अटैचमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल आपके पास इथेन है इस प्रोजेक्शन को समझने के लिए। तो अगर आप देखो, तो अगर हम इसको स्पेस के अंदर देखें, 3D फॉर्म के अंदर देखें, तो एक और आपको रिप्रेजेंटेशन दी गई। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस तरह से बनाऊं कि इसको मैं रोटेट कर दूं ऐसे कि ये कार्बन पीछे की तरफ जाए और कार्बन नंबर 2 पीछे जाए और कार्बन नंबर 1 आगे की तरफ आ जाए, तो ये ऐसे बनेगा कि कार्बन नंबर 1 सेंटर में आ गया, ठीक है, कार्बन नंबर 1 सेंटर में आ गया, और इसके ऊपर अटैच किया हाइड्रोजन, ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है। अब इसके ऊपर फ्रंट से अगर आप देखो फर्स्ट कार्बन को, तो उसके ऊपर 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, और इसके पीछे कार्बन नंबर 2 है। तो पीछे वाले कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास एक सर्कल बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो एच ऊपर लाइन से ऊपर निकल रहा है इस कार्बन नंबर 1 के साथ, तो इंडिकेट कर रहा है ये इसका फ्रंटल व्यू है, ठीक है। इसको हम प्रॉक्सिमल भी कहते हैं, प्रॉक्सिमल व्यू। और इस कार्बन के पीछे भी कार्बन है, कार्बन नंबर 2, वो पीछे की तरफ आपको नजर नहीं आ रहा, तो उसकी जो बॉन्डिंग है वो पीछे से आ रही होगी। तो उसको शो करने के लिए मैं इसको इसके यहाँ पे यूँ बना दूंगा, एच एच एच, ठीक है। इसका मतलब है इस एच के पीछे एक और एच है, और वो एच किसी कार्बन से अटैच, तो सेकंड कार्बन से जो अटैच होने वाली बॉन्डिंग है हाइड्रोजन की, वो इस तरह से प्रॉक्सिमल की बाउंड्री के ऊपर नजर आएगी, ठीक है। तो उसके लिए एक सर्कल बना दिया फ्रंट में। ये सर्कल शो कर रहा है ये फ्रंटल व्यू है, और पीछे जो आपके पास इसके ऊपर जो बनेंगे डिस्टल, आपके पास डिस्टल बॉन्डिंग को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस कार्बन नंबर 1 के पीछे जो मौजूद होने वाला कार्बन है, उसको हम इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन की फॉर्म के अंदर उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ऑल द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आर एट अ 120 डिग्री एंगल। जितने भी कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग है, जितने भी कार्बन के साथ इंटरकनेक्टेड हाइड्रोजन है, वो 120 डिग्री के ऊपर इंटरकनेक्टेड है। तो अगर आप इसको रोटेट करोगे जस्ट लाइक स्टीयरिंग ऑफ अ व्हील, अगर आप देखते हैं कि अगर इसको रोटेट करते हैं राइट और लेफ्ट, तो आपके पास जस्ट लाइक दैट कि फ्रंट का हाइड्रोजन पीछे वाले हाइड्रोजन को हाइड कर देगा। अगर फ्रंट स्टीयरिंग को मूव कर दो, तो पीछे वाले हाइड्रोजन जो आपके एक्सपोज हो जाएंगे। तो दिस प्रोजेक्शन इज जस्ट लाइक दैट, it represents the view of different bond on axis with a carbon that is in front shown as a point। इस सेंटर वाली जो फ्रंटल पे इसको पॉइंट के तौर पे शो किया जा रहा है, एंड द कार्बन दैट इज बॉन्डेड टू इट शोन एज अ सर्कल। जो कार्बन पीछे की तरफ अटैच है उसको हमने सर्कल से शो कर दिया, ठीक है। फ्रंटल को हमने कह दिया पॉइंट से, और बैक को हम सर्कल से कह दिया। इसको हमने प्रॉक्सिमल कह लिया, इसको हमने डिस्टल व्यू कह दिया। The carbon hydrogen bonds to each carbon positioned at 120 degree from each other. The hydrogen which are attached with the carbon are at an angle of 120 degree. The hydrogen atoms nearest to the viewer are shown as bonded to the front carbon. ये
इस सामने वाली कार्बन जो अटैच है ये सामने से नजर आ रहे हैं. द हाइड्रोजन विच इज फार्दर अवे, farthest away or away from the observer, or it is behind the carbon or which add second carbon, the from the viewer are shown as a circle. तो इस सर्कल के ऊपर आपके पास हाइड्रोजन को शो किया गया है. ठीक है. तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल यही है कि इसकी दो आइसोमेरिक फॉर्म बननी है, यानी कि न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर भी आपके पास मल्टीपल शेप फॉर्मेशन होती हैं. और हम सिंपल एग्जांपल इथेन की भी ले सकते हैं, ब्यूटेन की भी ले सकते हैं. तो समझाने के लिए आपके पास इथेन की एग्जांपल सबसे आसान है समझने के लिए. तो इस रोटेशन की वजह से जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग है न्यूमन प्रोजेक्शन के अंदर डिफरेंट शेप्स बनते हैं. उसको कहते हैं हम इक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, या आपके पास आती है एक और कन्फर्मेशन उसको हम कहते हैं गॉचिक कन्फर्मेशन, गॉच कन्फर्मेशन या गॉच कन्फर्मेशन भी कहलाती है. ये इक्लिप्स निकला है जैसे कि सोलर आपके पास सोलर इक्लिप्स होता है आपके पास, ये सूरज के आगे चांद आ जाए तो इक्लिप्स कहलाता है. जस्ट लाइक दैट आपके पास एक कार्बन कार्बन इथेन केमिस्ट्री भी उसी चीज़ को रिजेंबल करती है. ठीक है. इसी तरीके से अगर आप एग्जांपल देखें और समझने की कोशिश करें, सॉहर्स पोजीशन क्या होता है. सॉहर्स पोजीशन हम कहते हैं जस्ट लाइक हॉर्स लाइक प्रोजेक्शन है कि हॉर्स अगर आप देखें घोड़े की मिसाल लें तो घोड़े के दो आगे पैर, चार पैर होते हैं. ठीक है. और एक हेड होता है और एक टेल होती है. तो अगर आप इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल समझने के लिए लें तो ये आपके पास आपके पास जो बना हुआ है वो ये आपके पास चेयर बनी हुई है, सॉरी टेबल है. ये टेबल की एग्जांपल लें तो इस टेबल के अंदर देखें जस्ट लाइक दैट कि फ्रंट के दो आपके पास पैर हैं और बैक के आपके पास दो दो पैर हैं. और या अगर आप कह लें इसका हॉर्स लाइक हेड है और इसकी ये टेल है. ठीक है. इसको हम कार्बन कार्बन कह दें और इसको हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कह दें, तो हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन कह दें. जस्ट लाइक दैट आपके पास इसको साइड व्यू को देखने के लिए हमारे पास एक और कन्फिगरेशन है, आपके पास एक और आपके पास रिप्रेजेंटेशन है स्पेस के अंदर. तो जो ग्रुप्स कनेक्टेड होते हैं उनको साइडल व्यू के तौर पर भी आप रोटेट करके देख सकते हो. ठीक है. तो इसको व्यू कैसे, इसकी सिंपल एग्जांपल आपके पास इथेन की भी है, ब्यूटेन की भी है. So the groups that are connected both to the front and back carbons are drawn just like a stick at an angle of 120 degree. A Sauer's projection is similar to the Newman projection, but it shows the carbon bond hidden in the Newman projection. Newman projection में एक जो पीछे वाला कार्बन था वो hidden था, वो नज़र नहीं आ रहा था. वो सर्कल की ऊपर उसकी जो बॉन्डिंग थी वो नज़र आ रही थी. ठीक है. जबकि सॉहर्स प्रोजेक्शन के अंदर जो डिफरेंस है न्यूमन के मुकाबले में, सॉहर्स के अंदर आपके पास फ्रंट कार्बन भी एक्सपोज होगा और जो बैक कार्बन है उसकी जो अटैचमेंट है वो भी एक्सपोज होंगी. Because we are presenting the structure in 2D format which indicates the 3D orientation of the groups which is interconnected with the structure. ये है तो 2D फॉर्म पर इसके अंदर ओरिएंटेशन जो है इन ग्रुप्स की वो 3D स्पेस के अंदर रोटेशन की बेसिस पे आप उसको विजुलाइज कर सकते हो. ओके. तो ये कार्बन इसके ऊपर मिथाइल लगा हुआ है, ये मिथाइल है. तो ये आपके पास ब्यूटेन की एग्जांपल है. तो सिंपल समझाने के लिए कि आपके पास ये फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है. दोनों आपके पास आसानी से आप देख सकते हो, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं. यू कैन व्यू इजिली. अगर इसको मैं पीछे ले जाऊं इस कार्बन के, तो आपके पास ये न्यूमन प्रोजेक्शन बन जाएगा. इसमें फ्रंटल कार्बन नजर आ रहा होगा, बैक कार्बन नजर नहीं आ रहा होगा. ठीक है. एक चीज़. फिर इसके अलावा इसमें समझने वाली चीज़ ये है कि अगर आप इसको रोटेट करो, इस सिंगल कार्बन को रोटेट करें ऑन इट्स एक्सिस, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये रोटेट भी होगा, हाइड्रोजन भी रोटेट होगा और एक्सिस के ऊपर रोटेशन भी विजुलाइज कर सकते हैं. ये जो मिथाइल इस मिथाइल के सामने आ रहा है, जब इसको रोटेट करोगे तो ये नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो दे आर फेसिंग और प्रोड्यूसिंग द स्टेरिक हिंडेंस और रिपल्जन on the base of attachment of groups or number of groups to the carbon atom, resulting into spinning of the or angular strain or the torsional strain which may try to spin the carbon on its axis. तो एक अलग चीज़ है कि this methyl group which is facing this methyl group, they will try to force each other, repel each other and tend to move the carbon on its axis. तो एक कार्बन मूव करेगा in order to stabilize the स्ट्रक्चर और कन्फर्मर ऑफ द ब्यूटेन इन अनदर स्ट्रक्चरल कन्फर्मर. तो सॉहर्स प्रोजेक्शन आपके पास 2D और 3D विजुलाइजेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है. 2D व्यू के अंदर 3D विजुलाइजेशन को विजुलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.
जबकि न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर आपके पास 3D विजुलाइजेशन होती है 2D स्पेस के अंदर। ये तमाम प्रोजेक्शंस जो हैं न्यूमैन, सॉहर्स और जो विजुअल प्रोजेक्शन है वो 2D इंडिकेशन है, 2D प्रोजेक्शन है ऑफ द 3D शेप्स। ठीक है, 3 डायमेंशन शेप की 2 डायमेंशन शेप के अंदर जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। प्रोजेक्शन मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगर हम इसकी फर्दर एग्जांपल अगर आप देखो, ये प्रैक्टिसिंग एग्जांपल अगर आप मैं इसको समझा दूँ कंपैरेटिवली, in this picture you can see the comparison of the Sawhorse picture with the Newman projection. There's an example of butanol. Butanol आपके पास है, इसके अंदर अल्कोहलिक OH ग्रुप जो है सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच्ड है। ठीक है, सिंपल ऐसी प्रोजेक्शन है। ये आपके पास जो आइसोमेरिक प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं ये आइसोमर्स हैं, ये आइसोमेरिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, 2 ब्यूटानॉल की, ये आपके पास कहलाएगी सॉहॉर्स, और ये आपके पास कहलाएगी फिशर प्रोजेक्शन, सॉरी न्यूमैन प्रोजेक्शन। सही है। तो इस न्यूमैन प्रोजेक्शन की आप बात करें तो इसी 100 हॉर्स की न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाई गई है, इसी 100 हॉर्स की आइसोमर्स की न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाई गई है। तो अगर आप देखो तो पहले वाले मॉलिक्यूल और सेकंड मॉलिक्यूल ये दोनों आइसोमर्स हैं, इसका फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल। तो इस फर्स्ट वाले का न्यूमैन ये रहा, इस सेकंड वाले का न्यूमैन ये रहा। ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और इसके ग्रुप्स अटैच हैं। सेकंड, इसको फर्स्ट कार्बन का, इसको सेकंड कार्बन का। सेकंड कार्बन के अल्कोहलिक ग्रुप है, 4 कार्बन एटम हैं, 1 2 सॉरी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी यही है आपके पास। और इसका अगर आप देखें एच एच आपस में फेस कर रहे हैं, ये भी एच एच फेस कर रहे हैं, ये मिथाइल मिथाइल फेस कर रहा है, और ये भी सी एच सी से फेस कर रहा है। ये आपके पास एनएंशोमर्स कहलाएंगे। ठीक, तो अगर हम इसका फर्स्ट वाले सॉहर्स प्रोजेक्शन का न्यूमैन प्रोजेक्शन देखें तो उसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ऐसे ही बनती है कि ये आपका फ्रंट था, प्रॉक्सिमल था, और ये आपका डिस्टल था, बैक पे। तो ये सेंटर कार्बन के ऊपर क्या अटैचमेंट है, OH, H और CH3 के, विच इज रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जर्वर, while the back carbon attachment will be represented with the help of this circle। तो पीछे की तरफ कार्बन की ऊपर जो अटैचमेंट है वो मिथाइल की है, H और H की है। तो सेकंड कार्बन जो कि बैक के ऊपर अटैच्ड है, उसकी ऊपर जो मौजूद अटैच्ड ग्रुप्स हैं वो आपके सर्कल के ऊपर उसकी बॉन्डिंग शो की जाएगी। इसी तरीके से सेकंड वाले को अगर आप देखें, सेकंड आइसोमर का सेकंड सॉहर्स आइसोमर का जो प्रोजेक्शन देखें न्यूमैन, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन इस तरह इंडिकेट की जाती है। ठीक है, तो I hope this projection will help you to visualize or identify or to draw different isomeric form of different carbohydrates, different structure of the drug. You can easily understand the visualization of the molecule in 3D space and 2D space, in 3-dimensional space and the 2-dimensional space. That's all from today's lecture. Next lecture we'll start with the nomenclature of stereoisomers. We'll discuss with the DL isomerism and RS system and the EZ nomenclature naming system of the different stereoisomeric types. Thank you. Allah Hafiz.